We will start with the IUPAC names of straight and branch chain alkanes. Today we are starting with the IUPAC name of straight and branch chain alkane. Correct? Straight and branch chain alkane. Straight and branch chain alkane are also called as saturated hydrocarbon. Okay, so we are starting with the IUPAC name of straight and branch chain alkane, and alkanes are also called as what? Saturated hydrocarbon. Correct? We'll take one by one. The first one, CH4. Now we all know that CH4 is called as the CH4 is called as CH4 is called as methane. Correct? CH4 is called as the methane. Second, C2H6, or it can be also written as what? CH3. CH3 is called as a ethane. C2H6. C2H6 is what? CH3, single bond CH3 is called as the ethane. Third, CH3, CH2, CH3, three carbon atom. Three carbon atoms, so it is called as a propane. They all are straight chain. See, we are having two type of the alkane, straight chain and branch chain. The first I have taken the example of straight chain. Methane, only one carbon atom, so it is called as a meth, and ends with what? ANE. Two carbon atoms, so it is called as a eth, and because it contains carbon-carbon single bond, the suffix is what? ANE. Here, how many carbon atom are there? Three carbon atom are there. Three carbon atom are called as a prop, and because they contain carbon-carbon single bond, it is called as what? ANE. So here ANE is a suffix. ANE is a suffix. Suffix matlab ending point. We'll take one, CH3, CH2, CH3. 1 minute. CH2, CH3. How many carbon atoms are here? 1, 2, 3, 4. 4 carbon atom. So 4 carbon atom is called as a butane. 4 carbon atom, so it is called as a but. And because it contains carbon-carbon single bond, it is called as what? ANE, butane. Now we'll take the one more straight chain alkane, CH3, CH2, 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 and CH3. How many carbon atom? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon atom is called as a pent, and carbon-carbon single bond, so it is called as what? ANE. One more straight chain, CH3, CH2, CH2, CH2. 1, 2, 3, 4, 5, and then one more will have here CH3. See, the first carbon atom is CH3, last carbon atom is CH3,
and all middle carbon atom are CH2. All middle carbon atom are CH2. All middle carbon atom are CH2 and CH2. The first and the last carbon atom are CH3. All middle carbon atom are CH2. How many carbon atoms we are having over here? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 is called as a hex. And carbon-carbon single bond. So it is called as a hexane. It is called as a hexane. So these are the example of straight chain alkane. Now we take the example of branch chain. These all are the example of straight chain alkanes. Of course, many more are there. Many more examples are there, but we have taken which example? Methane, ethane. So just remember, one carbon atom is methane, two carbon atom means ethane, three carbon atom means propane, four carbon atom means butane, five carbon atom means pentane, six carbon atom means what? Hexane, and many more are there. Seven carbon atom is called as a heptane, eight carbon atom are called as octane, 9 carbon atom are called as a nonane, and 10 carbon atom are called as a decane. Now we'll see the nomenclature of IUPAC nomenclature of branch chain alkanes, and we know that alkanes are also called as what? Saturated hydrocarbon, correct? IUPAC nomenclature of the branch chain alkane, and branch chain alkane are also called as what? Saturated hydrocarbon, both. Whether we can say straight chain or branch chain, both are called as what? Saturated hydrocarbon. So branch chain alkane. Now we'll take one example. Is the first one. CH3, CH, CH3, CH3. Now here we have to follow the certain rule. Now what is the first rule? I'll just write the rules here on the one page. I'll write rules of IUPAC, or 1 minute. I'll write down the rule simultaneously. Only what is the rule here? The first rule is I can just write down here. This is example 1. Rule 1, I can say select what is the rule 1? Rule 1 says what? Select the longest continuous chain of carbon atom. Longest. तो ये हमारा देखो 1, how many carbon atom? We have to see total number of carbon atom are 4. But we have to select what? We have to select the longest continuous chain of carbon atom. And the longest continuous chain of carbon atom are called as the parent chain. That is called as a parent chain. तो ये हमारा देखो 1, 2, 3. अगर मैं स्ट्रेट जाऊंगा तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन बना. लॉन्गेस्ट 1, 2, 3. So select the longest and continuous chain of carbon atom. Longest continuous chain of carbon atom, and that longest continuous chain of carbon atom is called as a parent chain. And all other carbon atom
all other carbon atom not included in the chain. देखो ये हमारा चेन है 1 2 3, तो ये कार्बन आइटम चेन में इंक्लूड नहीं है, साइड चेन में आ रहा है. सो ऑल अदर कार्बन आइटम नॉट इंक्लूडेड इन दिस कार्बन चेन कॉन्स्टिट्यूट द साइड चेन. उसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइड चेन. तो ये हमारा मिथाइल, ये कौन सा चेन रहेगा, साइड चेन रहेगा. It is also called as a branch. It is also called as a branch, or it is also called as a alkyl substituents. It is also called as what? Alkyl substituents. Correct. So ये हमारा मिथ. So this is the longest chain of how many carbon atom we got? 1 2 3. 1 2 3. This methyl group, which is not a part of the straight chain, methyl group, which is not a part of the straight chain, are called as a branch. Either we can call it as a side chain. So this CH3, and we know that CH3 is called as a methyl. So CH3 is a side chain, or you can call it as a branch chain, or you can call it as a alkyl substituents. You can call as what? Alkyl substituent. Second rule we'll write down here. Second rule. One minute, I'll just write on the next page. Yes, now what is the first rule we have seen? What is the first rule? Find out the longest continuous carbon chain, and the carbon chain which are not part of the longest chain are called as a branch. Now what is second rule? See here. The parent chain, जो हमारा main chain रहेगा, the parent chain is number from one end to the other. The parent chain is number from one end to the other to locate the position called as a locant number of alkyl substituent. मतलब अगर ये हमारा longest continuous chain है, तो अभी हमें इसे नंबरिंग करना है. नंबरिंग कैसे करना है? नंबरिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड. मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड में नंबरिंग करो, या राइट साइड से लेफ्ट साइड में नंबरिंग करो, ताकि इस मिथाइल को, ये जो हमारा ब्रांच है, उसको कुछ नंबर यहाँ पे आ जाए. और यहाँ पे जो नंबर मिथाइल ग्रुप को मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? लोकंट. लोकंट, LOCANT. So what is the next point they are saying? The parent chain is number from one end to the other end. The parent chain is number from one end to the other end. For what purpose? To locate the position. To locate the position of what? To locate the position of the alkyl substituent. To locate the position of the alkyl substituent, and that position are called as what? Locant number. It is called as a locant number. But numbering कैसे करोगे? The numbering is done in that direction. The numbering is done in that direction, which will result in lowest possible locant number. मतलब ऐसे नंबरिंग करो कि हमारे 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 ब्रांच को कैसा नंबर आना चाहिए? लोएस्ट. ब्रांच को नंबर कैसा आना चाहिए? लोएस्ट पॉसिबल लोकंट नंबर. मतलब ये जो हमारा कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन को हमें नंबरिंग करना है. इस कार्बन चेन को नंबरिंग करना है either from the left hand side or from the right hand side. नंबरिंग करना है, बट नंबर इट इन सच अ वे कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो हमारा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो हमारा साइड चेन है, ये जो हमारा ब्रांच है, उसको नंबर कैसा आना चाहिए? मिनिमम नंबर आना चाहिए. इसे नंबर कैसा आना चाहिए? मिनिमम. तो अभी देखो, मैं अगर नंबरिंग लेफ्ट साइड से करूंगा तो 1 2 3 1 2 3. 2 पे क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है. CH3 is called as a methyl. तो at number 2 position we are having the methyl. लेकिन अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करूंगा, राइट साइड से, तो 1 2 3. तो राइट साइड से भी सेकंड नंबर पे आ रहा है. तो नंबरिंग कैन बी डन आइदर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, और नंबरिंग कैन बी डन आइदर फ्रॉम द राइट हैंड साइड. तो हमने सेकंड रूल क्या देखा? देखो कि हमारे पेरेंट चेन को, जो हमने चेन मार्क किया हुआ है, उसे नंबरिंग करना है. Numbering done from the one end to the other end. Numbering क्यों करना है? To locate the position of the alkyl substituent.
टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, और अल्काइल का हमें जो पोजीशन मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, लोकेंट नंबर। लेकिन नंबरिंग कैसे करोगे, नंबरिंग तो करना है, लेकिन नंबरिंग कैसे करोगे कि जो हमारा ब्रांच नंबर है कि हमारा लोकेंट नंबर कैसा आना चाहिए, हमारा ब्रांच का नंबर कैसा आना चाहिए, लोएस्ट, हमारे ब्रांच का नंबर कैसे आना चाहिए, लोएस्ट आना चाहिए। तो ओके ठीक है, तो यहाँ पे अभी नाम, फिर यहाँ पे नाम कैसे लिखोगे, ये सेकंड पॉइंट हो। अभी ना गो फॉर द थर्ड रूल। थर्ड रूल, रूल नंबर 3 क्या है देखो, नेम ऑफ द अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ द अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, एक मिनट, नेम ऑफ द अल्काइल, जो हमारा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, नेम और एडेड इन द, उसका नाम कैसे लिखना है, पहले लिखना है। यहाँ पे हमारा ये अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल है, इसका नाम पहले लिखना है, इसका नाम पहले लिखना है। तो क्या देखो, नेम ऑफ द अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट आर एडेड एज अ प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ द पेरेंट अल्केन। मतलब पेरेंट अल्केन के पहले, पेरेंट अल्केन के पहले हमें क्या लिखना है, नेम ऑफ द अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। करेक्ट, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमें कैसे लिखना है, प्रीफिक्स में लिखना है, इसके पहले लिखना है पेरेंट अल्केन के, लिखना है पेरेंट अल्केन के पहले लिखना है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा और ऐड करेंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, नेम ऑफ द, हमारा जो भी सब्स्टिट्यूएंट रहेगा उसका नाम पहले लिखना है। कहाँ पे लिखना है, इन द प्रीफिक्स। और सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, नेम ऑफ द पेरेंट अल्केन लिखना है। करेक्ट, ये लिखने के बाद अगर हमारे पास डिफरेंट अल्काइल ग्रुप रहेंगे, अलग अलग अल्काइल ग्रुप अगर रहेंगे, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अगर रहेंगे, देन दे आर लिस्टेड, उनके नाम कैसे लिखना है, इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर विथ ईच सब्स्टिट्यूएंट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर विथ ईच सब्स्टिट्यूएंट नेम प्रेसिडेड, प्रेसिडेड बाय द अप्रोप्रिएट लोकेंट नंबर। मतलब हर एक अल्काइल ग्रुप के पहले उसका नंबर लिखना है, उसका लोकेंट नंबर लिखना है। और यहाँ पे नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द लोकल नंबर बाय हाइफन। मैं एग्जांपल ही बताता हूँ, फिर आपको इस समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मुझे ये हमारा कंपाउंड है, सबसे पहले हमने क्या देखा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन देखा। सेकंड हम लोगों ने क्या किया, नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग कैसे करना है कि हमारे ब्रांच को मिनिमम नंबर आना चाहिए, वो भी हो गया। थर्ड, अभी हमें नाम लिखते समय देखो, ये हमारा कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, तो आई राइट 2 डैश मिथाइल। मिथाइल हमारा ब्रांच है, मिथाइल हमारा ब्रांच है, कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे, तो 2 मिथाइल। and then how many carbon atom in the chain, 1 2 3, 3 carbon atom in the chain, so it is written as propane। तो ये हमारा IUPAC नेम है। देखो, सेकंड कार्बन आइटम पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन आइटम इन द चेन है तो इट इज रिटन एज अ प्रोपेन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा ब्रांच कहाँ पे आ गया, ब्रांच नेम इज रिटन in prefix, branch name is written in the prefix, and name of the main alkane, main alkane मतलब name of the parent alkane is written in the suffix, ये बाद में आ गया। और यहाँ पे देखो, नेम और नंबर के बीच में क्या लिखा, हाइफन लिखा है। नेम एंड नंबर के बीच में क्या लिखा, हाइफन, हाइफन मतलब डैश। देखो यहाँ पे रूल नंबर था कि नेम ऑफ, क्या था देखो, द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट is separated from the local number by hyphen. Name of the substituent separated from the locant, मतलब नंबर और नेम के बीच में क्या आना चाहिए, डैश आना चाहिए। Now I will take one more example. Now or I will take one second example. I will take example 2.
ओके, इन दिस एग्जांपल सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ये हमारा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन हो गया, ये हमारा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन हो गया, करेक्ट। बाद में नंबरिंग करें, नंबरिंग ऐसे करो कि ये हमारा ब्रांच है, तो देखो हाउ मेनी कार्बन आइटम इन द स्ट्रेट चेन, 1 2 3 4 5, और ये हमारा ब्रांच, ब्रांच अलग हुआ। अभी नंबरिंग ऐसे करना है हमें कि ये ब्रांच को मिनिमम मिनिमम नंबर आना चाहिए, नंबर द कार्बन चेन इन सच अ वे दैट ब्रांच शुड गेट द मिनिमम नंबर। अभी देखो अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करूंगा, लेफ्ट से अगर नंबरिंग करूंगा तो ब्रांच को कितना नंबर आ रहा है, 1 2 3। राइट से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3, 3 नंबर आया, तो ब्रांच नंबरिंग कहां से भी चलेगा, 1 2 3 4 5। हमने दोनों साइड से नंबरिंग देखा, लेफ्ट साइड से भी ब्रांच को नंबर आ रहा है थर्ड, राइट साइड से अगर मैं नंबरिंग किया 1 2 3 तो भी नंबर आ रहा है थर्ड, करेक्ट। तो दोनों साइड से सेम नंबर आ रहा है, तो नंबरिंग कोई भी साइड से चलेगा। अभी हमें नाम लिखना है, 3 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, तो आई राइट 3 डैश मिथाइल। 3 इज अ नंबर, मिथाइल इज अ नेम, नेम और नंबर के बीच में क्या आना चाहिए, हाइफन। And then how many carbon atom we have got in the chain, 1 2 3 4 5, and 5 carbon atom is called as a pentane। और देखो ये कंप्लीट वन वर्ड है, कंप्लीट वन वर्ड है, बीच में स्पेसिंग नहीं है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 3, 3 पे कौन सा ग्रुप आ रहा है, मिथाइल, सो 3 मिथाइल, ये हमारा प्रीफिक्स में आ गया। एंड हाउ मेनी कार्बन एटम इन द चेन वी आर हैविंग, 1 2 3 4 5, 5 is called as a pentane, called as a pentane। तो 3 पे आ रहा है मिथाइल, एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन द मेन चेन आर व्हाट, पेंटेन। यहाँ पे देखो नंबर और नेम के बीच में क्या आ रहा है, डैश आ रहा है, हाइफन आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट आर सेपरेटेड फ्रॉम द लोकेंट नंबर बाय हाइफन। ये हमारा नेम है, ये हमारा लोकेंट नंबर है, लोकेंट नंबर और नेम के बीच में क्या आना चाहिए, हाइफन आना चाहिए। विल टेक वन मोर एग्जांपल। Example 3, CH3, CH, CH3, CH2, CH3. First, what is the first step? Find out the longest continuous carbon chain. तो find out the longest continuous carbon chain. तो ये हमारा longest continuous carbon chain होगा, longest 1 2 3 4, 1 2 3 4 नंबरिंग। अभी नंबरिंग कहाँ से करोगे, लेफ्ट से करोगे कि राइट से करोगे। अगर नंबरिंग लेफ्ट साइड से करोगे तो ब्रांच को लेफ्ट से नंबरिंग करोगे, तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड 1 एंड 2, ब्रांच को नंबर आ रहा है 2। लेकिन राइट से नंबरिंग करोगे तो ब्रांच को नंबर कितना आ रहा है, 1 2 3। तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे तो ब्रांच का नंबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। राइट से नंबरिंग करोगे तो ब्रांच को नंबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमें नंबरिंग लेफ्ट से करना पड़ेगा, 1 2 3 4। बिकॉज रूल क्या है, ब्रांच को नंबर कैसा आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। ब्रांच को नंबर कैसे आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। मतलब ब्रांच को यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 तो नंबरिंग 3 आ रहा था, लेफ्ट से नंबरिंग करोगे नंबर 2 आ रहा, तो हमें मिनिमम नंबर देखना है, मिनिमम। तो अभी यहाँ पे नाम क्या लिखोगे, 2, 2 पे कौन सा ग्रुप आ रहा है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। एंड हाउ मेनी कार्बन आइटम इन द चेन वी गॉट, 1 2 3 4, 4 इज चेन में कितने कार्बन आइटम है, 1, ये हमारा प्रीफिक्स में आ गया। हाउ मेनी कार्बन आइटम इन द चेन, 1 2 3 4, 4 is called as a butane। So 2 is a number, methyl is the name, between number and name what we write over here, dash and butane। Okay, here
फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। नंबरिंग, ओके ओके, ये मैं नंबरिंग, यस, अगर यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, यहाँ पे लेफ्ट से नंबरिंग करोगे तो ब्रांच कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट से नंबरिंग करोगे तो ब्रांच कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 पे आ रहा है, 3 पे। और यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, ब्रांच कहाँ पे आ रहा है, 4 पे। तो हमें कौन सा नंबरिंग कंसिडर करना है, लोअर, तो नंबरिंग यहाँ से आएगा 1 2 3 4 5 6। देखो अगेन आई चेक, लेफ्ट से नंबरिंग करोगे तो ब्रांच को नंबर कितना आ रहा है, 3rd आ रहा है। राइट से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, ब्रांच को नंबर कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है। तो लेफ्ट साइड से नंबर, लेफ्ट में देखो 3, 3 पे कौन सा ग्रुप आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। 3 पे कौन सा ग्रुप आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, मिथाइल। और मिथाइल आने के बाद हाउ मेनी कार्बन आइटम वी आर हैविंग हियर, 6। 6 मतलब क्या लिखोगे यहाँ पे, हेक्सेन। तो ये हमारा नाम है। देखो नंबर और नेम के बीच में क्या आ रहा है, डैश आ रहा है। मिथाइल हमारा ब्रांच है, ये हमारा ब्रांच है। हाउ मेनी कार्बन आइटम इन द चेन वी आर हैविंग, 6। 6 कार्बन आइटम इन द चेन इज कॉल्ड एज अ हेक्सेन। 6 carbon atom in the chain are called as a hexane. Okay. Next example. तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। 1 2 3 4 5 ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। अभी नंबरिंग कहाँ से करोगे, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करोगे तो ब्रांचेस कहाँ पे आ रहा है, 2 एंड 3 पे आ रहा है। ब्रांचेस कहाँ पे आ रहा है, 2 एंड 3 पे आ रहा है। 2 एंड 3 द सम इज कमिंग 5। लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे तो ब्रांचेस कहाँ पे आ रहा है, 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 5। अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे, राइट हैंड साइड से, तो ब्रांचेस कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4, ब्रांचेस कहाँ पे आ रहा है, 3 4 आ रहा है। 3 4 इज कमिंग टुवर्ड्स 7। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है लोएस्ट सम। हमें क्या देखना है, लोएस्ट सम देखना है, लोएस्ट सम देखना है। ओके, लोएस्ट सम देखना है। तो अभी वैसे भी देखो, लेफ्ट साइड से नंबरिंग कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, 2 और 3 पे। और यहाँ पे नंबरिंग कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, 3 और 4 पे। तो 2 एंड 3 इज एनी टाइम लोअर देन 3 एंड 4। 2 एंड 3 इज एनी टाइम लोअर देन 3 एंड 4। तो हमारा नंबरिंग कहाँ से होगा, लेफ्ट साइड से होगा, एंड नॉट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ओके, लेकिन अभी देखो यहाँ पे नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 2 पे आ रहा है मिथाइल, 3 पे आ रहा है इथाइल, 2 पे आ रहा है मिथाइल, 3 पे आ रहा है इथाइल। तो पहला नाम किसका लिखोगे, पहला नाम अल्फाबेटिकली मिथाइल मतलब एम, इथाइल मतलब ई। तो अल्फाबेटिकली व्हाट कम फर्स्ट, ई कम बिफोर एम। तो यहाँ का नंबर 2 और 3 मत देखो। अभी क्या देखना है, मिथाइल का अल्फाबेट कौन सा आ रहा है, एम आ रहा है। इथाइल का अल्फाबेट क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो एम और ई में पहला कौन सा अल्फाबेट आएगा, ई आएगा। तो यहाँ पे ई का पहला नाम मतलब इथाइल पहले, तो यहाँ पे नाम क्या आएगा, देखो 3 इथाइल डैश 2 मिथाइल, 3 ethyl, 2 methyl, and there are how many carbon atom in the chain, 5. 5 is called as pentane. यहाँ पे हमने देखा था कि अगर हमारे पास अलग अलग अल्काइल ग्रुप रहेंगे, अगर अलग अलग अल्काइल ग्रुप रहेंगे साइड चेन में, then the name should be written in the alphabetical order of the alkyl group. The name to be written in the alphabetical order of the alkyl group. उनका नाम उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना चाहिए। मिथाइल का अल्फाबेट आ रहा है एम, इथाइल का अल्फाबेट आ रहा है ई,
तो M और E में पहले क्या लिखना पड़ेगा, E लिखना पड़ेगा। तो इथाइल, देखो नंबर और नेम के बीच में क्या आना चाहिए, डैश। नेम एंड नंबर के बीच में क्या आना चाहिए, डैश। नंबर एंड नेम, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट बिटवीन द नंबर एंड द नेम हमेशा क्या आना चाहिए, डैश आना चाहिए। सो 3 पे आ रहा है इथाइल, 3 इथाइल, 2 मिथाइल पेंटेन। I'll take other example. Yes. Again here, find out the longest continuous carbon chain. Find out the longest continuous carbon chain. तो ये हमारा longest chain बनेगा, ये हमारा longest chain बनेगा, longest। अभी longest chain बनने के बाद लेफ्ट से नंबरिंग करो, लेफ्ट साइड से अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 3 दोनों ब्रांचेस कहाँ पे आ रहे हैं, 3 3 पे आ रहे हैं। मिथाइल भी 3 पे आ रहा है, इथाइल भी 3 पे आ रहा है। राइट हैंड साइड से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 दोनों ब्रांचेस 3 3 पे आ रहे हैं। 3 + 3 6, 3 + 3 6। तो नंबरिंग कहाँ से भी करो, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज लेफ्ट साइड से नंबरिंग आ रहा है 3, राइट साइड से भी नंबरिंग आ रहा है 3, तो कोई साइड से भी नंबरिंग चलेगा। 1 2 3 4 5। ओके, अभी प्रॉब्लम क्या रहा है, 3 पे आ रहा है मिथाइल और 3 पे आ रहा है इथाइल, लेकिन मिथाइल और इथाइल में कौन सा अल्फाबेट पहले आएगा, ई आएगा। मिथाइल और इथाइल में कौन सा अल्फाबेट पहले आएगा, ई आएगा। तो व्हाट इज द नेम हियर, 3 इथाइल, 3 इथाइल एंड देयर हाउ मेनी, 3 इथाइल के बाद क्या लिखोगे, 3 मिथाइल। ऐसा मत समझना कि दोनों एक ही कार्बन आइटम पे नंबर दो बार एक ही बार लिखने का, नहीं, ये देखो 3 इथाइल ये हुआ, 3 मिथाइल, मिथाइल के लिए नंबर अलग निकला, 3 इथाइल 3 मिथाइल। And how many carbon atom we got, 1 2 3 4 5, 5 carbon atom is called as pentane, 5 carbon atom is called as the pentane। तो देखो यहाँ पे दोनों ब्रांचेस कौन से कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, दोनों ब्रांचेस थर्ड कार्बन पे, लेकिन अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, इथाइल, इथाइल मतलब ई, तो 3 इथाइल। उसके बाद कौन आएगा, 3 मिथाइल, तो 3 मिथाइल। हर एक ब्रांच के लिए उसका नंबर लिखना जरूरी है, अगर वो नंबर सेम रहेगा तो भी 2 बार लिखना जरूरी है। नंबर और नेम के बीच में क्या आएगा, हाइफन। नेम एंड नंबर के बीच में क्या आएगा, हाइफन। नंबर एंड नेम के बीच में क्या आएगा, हाइफन, एंड दैट इज कंप्लीट वन। 3 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। ओके, टेक सम मोर एग्जांपल। तो यहाँ पे रूल देखो, रूल किया था हम लोगों ने, रूल नंबर 3 में क्या किया था कि इफ different alkyl substituents are listed in the alphabetical order, different alkyl substituents are listed in the alphabetical order with each substituent name preceded by the appropriate number। मतलब हर एक ब्रांच के पहले प्रॉपर नंबर लिखना जरूरी है। देखो यहाँ पे इथाइल के पहले नंबर कौन सा लिखा, 3 लिखा। मिथाइल के नंबर कौन सा लिखा, 2 लिखा। यहाँ पे इथाइल के पहले नंबर कौन सा लिखा, 3 लिखा, और मिथाइल के पहले नंबर कौन सा लिखा, 2। हर एक ब्रांच के लिए उसका नंबर, अप्रोप्रिएट नंबर लिखना जरूरी है, ब्रांच नंबर लिखना जरूरी है। करेक्ट। Yes, the first, what is the rule here, find out the longest chain, find out the longest chain। तो ये हमारा longest chain, longest chain। ओके, ये हमारा longest chain है। लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग कहाँ से करोगे, अगर मैंने लेफ्ट साइड से नंबरिंग किया, लेफ्ट
एंड साइड से तो कहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 आ रहा है। और अगर मैंने राइट साइड से नंबरिंग कर दिया तो राइट साइड से नंबरिंग क्या पे आ रहा है 1 2 3 पे ब्रांच आ रहा है। तो लेफ्ट साइड से वी आर गेटिंग द ब्रांच एट विच नंबर, फोर्थ नंबर. From right side we are getting, always when I say left and right, it is your left and right hand side. ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है. लेफ्ट साइड से ब्रांच कौन से कार्बन पे आ रहा है, फोर्थ पे. राइट साइड से ब्रांच कौन से कार्बन पे आती है, तो हमें राइट साइड नंबरिंग करना है. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6. 3 पे कौन सा ब्रांच आ रहा है, C2H5. C2H5 is called as ethyl. So name will be here 3 ethyl. 3 ethyl. थर्ड पे आ रहा है ethyl. 3 ethyl. And how many carbon atom in the chain? 1 2 3 4 5 6. 6 is called as hexane. 3 ethyl hexane. The name of the compound is what? थर्ड पे आ रहा है ethyl. The third is a locant number. ethyl is a branch name. ब्रांच नेम और locant number के बीच में क्या आएगा, डैश. एंड 6 कार्बन एटम तो हेक्सेन. पेरेंट अल्केन इज अ हेक्सेन. 3 ethyl hexane और एक कंप्लीट वर्ड आएगा. करेक्ट, कंप्लीट वर्ड आएगा. अभी रूल नंबर हमारा 4 देखेंगे. एक मिनट. ये बाद में रूल करेंगे. और एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं. एग्जांपल नंबर 8. देखो सबसे पहले रूल क्या आएगा हमारा, फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. तो ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगा. ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगा. हम हाउ मेनी कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6. अब अगर हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर दोगे तो कहाँ पे आ रहा है 1 2 3 एंड 4. 3 पे एक ग्रुप आ रहा है, 4 पे एक ग्रुप आ रहा है. 3 + 4 is 7. और अगर हम लोगों ने राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर दिया, राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से क्या हो रहा है, 1 2 3 एंड 4 पे आ रहा है. तो 3 एंड 4 पे 7 आ रहा है. करेक्ट. तो अभी हमें यहाँ की क्या पता चल रहा है, दोनों साइड से हमारा सम सेम आ रहा है. लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे तो कहाँ पे आ रहा है, 3 और 4 पे. राइट साइड से नंबरिंग करोगे तो भी आ रहा है 3 और 4 पे. फिर कौन सा अप्लीकेबल रहेगा, तो फिर हमें क्या देखना है, कौन से ब्रांच अटैच है. यहाँ पे अटैच है ब्रांच मिथाइल, यहाँ पे ब्रांच अटैच है इथाइल. तो व्हेन द टू ब्रांचेस, if two branches are at equal distances from both the end. If two branches are at equal distance from both the ends, then the numbering is done such a way so as lower alphabet gets first, lower alphabet get first priority. Two branches are at equal distance. अगर हमारे दोनों ब्रांचेस अगर इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे, देखो ये ब्रांच थर्ड पे आ रहा है, ये भी ब्रांच हमारा थर्ड पे आ रहा है,
So if two branches are at equal distance from both the ends, then the numbering is done in such a way so as the lower alphabet gets first priority. Lower. तो यहाँ पे क्या आ रहा है? इथाइल आ रहा है. यहाँ पे थर्ड नंबर पे इथाइल आ रहा है और यहाँ पे थर्ड नंबर पे मिथाइल. तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? राइट साइड से करोगे, बिकॉज ई should get the first priority over the M. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. आ रहा है समझ में आपको? मतलब अगर दो डिफरेंट, इफ टू ब्रांचेस दोनों इक्विडिस्टेंस है, ये भी थर्ड पे आ रहा है, ये भी थर्ड पे, नंबरिंग कहाँ से करना है? तो जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आएगा, तो ई कम बिफोर एम, तो इसे नंबरिंग ई से करना है. तो यहाँ पे थर्ड पे आ रहा है इथाइल और फोर्थ पे आ रहा है मिथाइल, तो नेम विल बी रिटन एज व्हाट? 3. Your name will be written. I'll write your name. Name will be written as what? 3 ethyl. 3 ethyl. 4 methyl. 3 ethyl. 4 methyl. And then how many carbon atom in the chain? 6. And 6 carbon atom in the chain can be called as a hexane. तो ये हमारे एक रूल हो गया. I'll just write down here as a rule number 4. Rule number 4. So if two branches are at equal distance from both the ends, then the numbering is done in such a way so as the lower alphabet gets the first priority. Correct? Lower alphabet gets the first priority. Okay. Now we'll go for the next 9. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, लॉन्गेस्ट, ये हमारा रहेगा लॉन्गेस्ट चेन. ये हमारा रहेगा लॉन्गेस्ट चेन. 1, 2, 3, 4, 5 लॉन्गेस्ट चेन. यहाँ पे दो ग्रुप आ रहे हैं. यहाँ पे नंबरिंग अगर लेफ्ट से करोगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग कहाँ पे आ रहा है? 2 and 3 पे आ रहा है. 2 + 3 5. नंबरिंग राइट साइड से करोगे, नंबरिंग कहाँ पे आ रहा है? 1, 2, 3, 4 पे आ रहा है. 3, 4 इज व्हाट? 7. तो ये चलेगा, ये नहीं चलेगा. तो ये नंबरिंग हुआ 1, 2, 3, 4, 5. करेक्ट? 1, 2, 3, 4, 5. लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो रहा है? 2 पे भी आ रहा है मिथाइल, 3 पे भी आ रहा है मिथाइल, 2 पे भी आ रहा है मिथाइल, 3 पे भी आ रहा है मिथाइल. दोनों मिथाइल मिथाइल ही है. Okay, दोनों मिथाइल मिथाइल. तो what we can write down here? We can write 2, 3 dash 2, देखो दो नंबर है, दो नंबर के बीच में क्या आएगा? 2 पे भी मिथाइल आ रहा है, 3 पे भी मिथाइल है, तो 2, 3 डैश डाई मिथाइल. देखो 2 पे आप 2 मिथाइल 3 मिथाइल नहीं लिख सकते हो. दोनों मिथाइल ग्रुप अगर सेम है, दोनों मिथाइल ग्रुप अगर सेम है तो क्या लिखोगे? 2, 3. 2 देखो दो नंबर के बीच में अभी क्या आ रहा है? कॉमा आ रहा है. 2, 3 dimethyl, and then how many carbon atom here in the chain? 5 carbon atom in the chain. So 5 carbon atom in the chain is called as the pentane. अभी मैं इसके लिए रूल लिखता हूँ. रूल, I'll write down the rule for this point. Okay. अगर हमारे पास if 2 or more identical substituents are present, अगर हमारे पास 2 or more identical substituent अगर present है, then we have to use prefix di for 2, tri for 3, and tetra for 4 are used. If 2 or more identical substituents are present, if 2 or more identical substituents are present, then prefix di for 2, tri for 3, and tetra for 4 are used. And the locant, मतलब हमारे जो substituent number है,
locant of the identical substituent are listed together but they are separated by what comma. तो यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट थे तो इसलिए उनके लिए क्या यूज किया, डाई. लेकिन दोनों सब्स्टिट्यूएंट को साथ में लिखना है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट को साथ में लिखना है, लेकिन दोनों के बीच में क्या लिखना है, कॉमा लिखना है. दोनों सेम है इसलिए दोनों को साथ में लिखना है. अगर अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग लिखना है. I'll take some more example. ये हमारा रहेगा लॉन्गेस्ट चेन. दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन. नंबरिंग कहाँ से भी करो, अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हो, नंबरिंग कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 2 3 4. राइट साइड से नंबरिंग करोगे तो भी कहाँ है 1 2, तो 2 3 4 एंड ऑल ब्रांचेस आर द सेम. तो नंबरिंग कोई भी चलेगा, दोनों में से कोई भी नंबरिंग चलेगा. यहाँ पे 1 2 3 4 5. तो 2 पे आ रहा है मिथाइल कॉमा, 3 पे आ रहा है मिथाइल कॉमा, 4 पे आ रहा है मिथाइल कॉमा. तो 3 बार आ रहा है. तो बिकॉज द ब्रांच इज द सेम, branch is the same, the substituent can be written together, number can be written together, but only between the two number comma try methyl 3 trimethyl 1 2 3 trimethyl. And how many carbon atom in the chain, 1 2 3 4 5. 5 is called as a pentane. 5 is called as a pentane. ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है. तो अगर नंबरिंग में लेफ्ट साइड से करूंगा तो क्या आएगा, 1 2 3. राइट साइड से नंबरिंग होगा तो कितना आ रहा है, 2 पे. 2 पे दोनों ब्रांच 2 पे ही है, लेकिन ये भी ब्रांच हमारा मिथाइल है, ये भी ब्रांच हमारा मिथाइल है. तो दोनों ब्रांचेस अगर सेम रहेंगे देन देयर लोकेंट्स आर रिटर्न टुगेदर. दोनों ब्रांचेस अगर सेम रहेंगे देन लोकेंट्स आर रिटर्न टुगेदर सेपरेटेड बाय कॉमा डैश. मिथाइल मिथाइल, हाउ मेनी टाइम्स मिथाइल वी आर हैविंग, 2 times, so we can say here dimethyl. डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन कि एक दोनों एक ही कार्बन पे है तो एक बार नंबर लिखेंगे तो चलेगा, चलेगा क्या, नहीं. इस मिथाइल का नंबर 2, इस मिथाइल का भी नंबर 2, दोनों 2 बार लिखना है, 2, 2 डाई मिथाइल. एंड हाउ मेनी कार्बन एटम इन द चेन, 3 कार्बन एटम इन द चेन इज कॉल्ड एज द प्रोपेन. सो 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन. अब यहाँ पे देखो नंबरिंग, अगर मैंने लेफ्ट साइड से नंबरिंग किया, लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग क्या आएगा, 1 2, 2 ब्रांचेस 3 3 4 3 3 4. इसका भी नंबर 3, इसका भी नंबर 3 और इसका नंबर 4. 3 + 3 4, 4 + 6 10. लेकिन अगर मैंने नंबरिंग राइट हैंड साइड से किया, राइट हैंड साइड से कितना आएगा, 1 2 3 4. इसका भी नंबर आ रहा है 4, इसका भी नंबर है 4 + 4. हाउ मच आई एम गेटिंग, 8 11. तो ये हमारा लोअर नंबर है, ये नहीं चलेगा. तो ओके, नंबरिंग कहाँ से होगा, 1 2 3 4 5 6. नंबरिंग चलेगा 6. अभी यहाँ पे देखो मिथाइल आ रहा है, लेकिन सबसे पहले क्या दिख रहा है, मिथाइल और इथाइल में अगर दो अलग अलग ग्रुप रहेंगे तो पहला किसको लिखना है, इथाइल को लिखना है. अभी डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन कि ये मिथाइल और ये मिथाइल, तो डाई मिथाइल मतलब डी आ रहा है.
हमें डाई का डी नहीं देखना है, मिथाइल का एम देखना है. टू डिसाइडिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, to decide the alphabetical order, we have to see the alphabet of the alkyl group and not of the prefix. मतलब तुम ऐसा बोलोगे यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, मतलब डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, और यहाँ पे आ रहा है इथाइल. तो अल्फाबेट डी और ई में देखना है क्या? नहीं, डी और में, डी में नहीं देखना है. कहाँ पे देखना है? एम में देखना है. एम और ई में पहला कौन आएगा ये नहीं देखना है तुम्हें. एम और ई में पहला कौन आएगा? ई आएगा. तो हियर आई विल राइट डाउन नेम एज व्हाट? 4 इथाइल, 4 इथाइल एंड 3 पे दोनों ग्रुप आ रहे हैं. तो व्हाट विल राइट डाउन हियर? 3,3. देखो दोनों दो दे आर ऑन द सेम कार्बन एटम, नंबर हैज टू बी रिटन ट्वाइस बिकॉज़ हमारे ब्रांच भी ट्वाइस है. So 3,3 dash dimethyl. And how many carbon atom in the chain? 6. Is called as the hexane. 6 is called as the hexane. Okay, so 4 ethyl, 3 dimethyl hexane. देखो डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन कि डी और ई में प्रायोरिटी देखना है क्या? नहीं, डी और ई में प्रायोरिटी नहीं देखना है. प्रायोरिटी किसके बीच में देखना है? एम और ई में देखना है. एम और ई में प्रायोरिटी कौन सा अल्फाबेट को जाएगा? ई को जाएगा. इसलिए नेम क्या आ रहा है? देखो 4 इथाइल, 3,3 dimethyl hexane, 3,3 dimethyl hexane. We have seen with the nomenclature. Some more example we will be doing it, but we will do it in the next lecture. Okay, तो यहाँ पे आपको रूल समझ में आ रहा है. What is the first rule? कि find out the longest continuous carbon chain. Longest chain select करने के बाद क्या करना है? Numbering of the chain. Numbering कैसे करोगे? Number the carbon chain in such a way the branch should get the minimum number. Branch को number minimum आना चाहिए. अगर दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप रहेंगे, दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप अगर रहेंगे तो नेम्स टू बी रिटन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. लेकिन अगर सेम टाइप का अल्काइल ग्रुप अगर रहेगा, देन वी कैन राइट डाउन द प्रीफिक्स एज डाई, ट्राई, टेट्रा, एक्सेट्रा. देन लास्ट दो नंबर के बीच में क्या आना चाहिए? दो नंबर के बीच में क्या आना चाहिए? कॉमा आना चाहिए. और नंबर एंड नेम के बीच में क्या आना चाहिए? हाइफन. हाइफन मतलब क्या आना चाहिए? डैश आना चाहिए. करेक्ट, हाइफन मतलब डैश आना चाहिए. So we have seen with the nomenclature. The remaining compound will do it in the next lecture.